morning, students. Today we are going to start with chapter 22, more on preposition. Yesterday we have gone through with the chapter 21, preposition. So now we know that what is exactly the preposition is all about. But in preposition also there is some words which we need to understand where exactly we have to place. Now in this chapter, we will first of all we're going to understand preposition or the adverb. Okay, the difference between preposition and the adverb. First, we will understand that. After that, we have such words like confusing pair kind of, we can say, that is under, below, above, over, where we are going to beside, besides, between, among, such kind of words are there. We will understand where exactly we have to place such kind of preposition words. Okay, so before I start with that, let's understand the difference between preposition or adverb. Okay, so in this chapter you will read about preposition which can be used as adverb as well as. You will also learn about confusing pair of preposition. So preposition को हम कैसे adverb भी यूज कर सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम confusing pair जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि between, among, beside, besides, above, over, ये सारे वर्ड्स confusing pairs है. ओके, सो उसे हम कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे. Okay, so let's begin. Preposition or adverbs. Read this sentence and note the highlight word. Seema came down. Seema came down the steps. The first sentence, the highlighted word down is an adverb. In the second sentence, the highlighted word down is a preposition. What it is exactly? फर्स्ट सेंटेंस में सीमा केम डाउन मतलब सीमा नीचे आई. सो उसका एक एक्शन हुआ. वेयर शी केम. व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब ये होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछ के आंसर हमें पता चलता है, जब एक्शन का हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो चीज हमें एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो एडवर्ब होता है. यू ऑल नो दैट. ओके, व्हाट इज एडवर्ब? विच, see downstairs it is written, an adverb is a word which tells us how, where, when, why, how frequently and to what degree the action taken place. ओके, जो हमें एक्शन, जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है वो एक्शन के बारे में हमें पता चलता है कि कब, कैसे, कहाँ, कितना. इंफॉर्मेशन, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है जिस वर्ड से, उसे हम कहते हैं एडवर्ब. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि सीमा, what Seema has done, Seema came down. Okay, where Seema came, Seema came down. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि सीमा का एक्शन पता चला कि सीमा नीचे आई. और सेकेंड सेंटेंस में क्या है? सीमा केम डाउन द स्टेप्स. सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डाउन हाईलाइट हुआ है वो हमें पोजीशन बता रही है कि सीमा कहाँ है. तो सीमा स्टेप से नीचे आई है. यहाँ पे हमें स्टेप मतलब हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके, सो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पता चलता है कि सीमा कहाँ आई है, तो सीमा नीचे आई है. ओके, सीमा स्टेप से कहाँ आई है, तो नीचे आई है. यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. यू रिमेम्बर, मैंने कल आपको बताया था कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. सो now you understood what is adverb. Okay, and the difference between these two sentences. Always the preposition will going to show you or give you the idea that the preposition is in the place, or preposition of time, or preposition of movement. Okay, understood that? So your next exercise, if you see this,
it is completely depend on what this highlighted words are standing. It stands for adverb or it stands for preposition. Okay, in exam if I ask you that just read this sentence and tell me whether this word is adverb or preposition, you have to mention that word and then against that कि ये word एडवर्ब है या प्रिपोजिशन है. ठीक है, आपको एग्जाम में बताना होगा. अब आपको ये दो सेंटेंस समझ में आ गया कि ये दोनों सेंटेंस के वर्ड सेम है, सिर्फ यहाँ पे ऊपर द स्टेप्स एंड नीचे द स्टेप्स. ऊपर द स्टेप्स है नहीं और नीचे द स्टेप्स है. एडवर्ब हमेशा हमें एक्शन के बारे में बताता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब. ओके, सीमा केम डाउन. अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि सीमा ने जो एक्शन किया है कि वो नीचे आई है, तो वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि वो नीचे आई है. सो ये एडवर्ब है, ये जो डाउन है वो एडवर्ब है. लेकिन यहाँ पे ये प्रीपोजिशन इसके लिए बन रहा है कि हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बता रहा है कि वो सीढ़ियों से क्या उस सीमा सीढ़ियों से कहाँ आई है, तो वो नीचे आई है. और सीढ़ी जो है द स्टेप्स मीन सीढ़ी, स्टेप्स जो है वो प्लेस है. ओके, इट इज द लोकेशन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस डाउन एंड दिस डाउन. सो नाउ लेट्स सी this. This is what the confusing pair I was talking about. Now, preposition confusing pair. अब ये confusing pair क्यों है? Under और below. Okay. Under means नीचे, below means नीचे. Understood? दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन preposition means exact place जहां पे आपको कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है. Are you getting what I mean to say? The word is having the same meaning, but in which sentence, which word you have to use, that we are going to see over here. What is the meaning of under? It is a meaning that नीचे. What is the meaning of below? मतलब नीचे. दोनों का मीनिंग तो हो गया सेम, बट आपको कौन से सेंटेंस में कौन सा मीनिंग वाला वर्ड का इस्तेमाल करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोर ऑन प्रीपोजिशन एंड कंफ्यूजिंग पेयर. हमने जब बोल रहे हैं तो इसी को ही हम कंफ्यूजिंग पेयर बोलेंगे. ओके, सो लेट्स सी. हमारा फर्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है अंडर एंड बिलो. द बॉल वॉज अंडर द टेबल. The temperature is below 10 degree Celsius today. अब यहाँ पे क्या है, जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ओके, जब हम किसी भी मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बिलो का. लेकिन जब हम किसी चीज को कवर करेंगे या हम when we talk about a solid thing, when you're talking about any solid thing, then the word under will going to come. But when you're talking about temperature, height, measurement, okay, when you are talking about measurement, when you're talking about height, when you talk about temperature, okay, that is not a solid thing. You cannot touch. Can you touch the measurement? Can you touch the height? Can you touch the temperature? No, you can't touch. Okay, so such kind of thing we will going to mention below. Okay, so यहाँ पे जब हमने टेम्परेचर की बात की तो हमने क्या कहा? बिलो का इस्तेमाल किया. बट जब हमने टेबल और बॉल, दैट इज अ सॉलिड थिंग जो आप टच कर सकते हो, ओके, तो वहां पे हमने अंडर का इस्तेमाल किया. ओके, देन अबव एंड ओवर. नाउ above and over is also containing the same meaning, but there is a beautiful picture above the table. Again here solid. That there was a new bridge over the river. Can you ब्यूटीफुल पिक्चर्स मीन्स आप उस फोटो को टच कर सकते हो जो टेबल पे है. इट्स अ माइनर थिंग,
But if it is a huge thing, then it is a over. But when you say above, then it will be normal thing. Okay, we use above to refer the thing that are at a higher or upper level. Above is used when one thing cover another without touching it, or when we refer the number. Means this is the very simplest way. When we use above, when we are giving higher or upper level, when we say it is, when we can compare. Okay, if you can compare things, then it will be above. if one thing is above another thing, okay, कोई एक चीज जो उसके ऊपर है और उस चीज को आप छू नहीं सकते, और वो चीज फर्स्ट चीज को टच भी नहीं कर रही है, इन दैट केस यू हैव टू यूज ओवर. ओके, सो this is the above and over. Then we have beside and besides. We use beside to mean by the side of or next to. We use besides to mean in addition to or also. हम beside कब लिखते हैं? जब हम किसी को किसी के बाजू में कहते हैं. और besides हम कब कहते हैं? जब हम addition करते हैं. When we say besides means जब हम किसी में addition करते हैं उसे हम besides कहते हैं, और जब हम किसी को किसी के नियर बाय या नेक्स्ट टू कहते हैं, then we use beside. Shreya stood beside her sister. Besides giving the little girl some money, mother also gave her food. Money के साथ साथ food भी दिया. So that is the addition. Okay. Between and among. The car was between the truck and the jeep. Mowgli was comfortable among the wolves. यहाँ पे between और among. Between जब हम दो चीज के बीच में बात करते हैं, that is a between. लेकिन among means हम उस चीज को बीच में ही बात करते हैं, लेकिन एक बड़े ग्रुप के बीच में जब हम बात करते हैं तब हम among कहते हैं. We use between to refer to we use between to refer something or someone in a middle of two things that are clearly separated. Among is used to talk about things that are not separated and are part of a large group. Okay, among क्या होता है कि वो ग्रुप का ही पार्ट होता है. ओके, और वो सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए उसे हम क्या कहते हैं? among. और जब हम दो चीज के बीच में सेपरेट कर सकते हैं थर्ड चीज को, दैट नोन एज अ बिटवीन. नेक्स्ट वी हैव by and with. We use by to mean next or by the side of within a certain time. Means जब हम इसके बाद या तो आपको within the time करना है. ओके, सो वो केस में हम क्या कहते हैं? by. My house is by the river. Then we use with to mean in a company of someone or something, or proposing something. Rita went with her mother to the market. Okay, so by or with is very easy for you to understand. Next we have since or for. We have since to indicate a particular point in time, an action of which continues still. Shreya has not visited her grandparents since May. Beena has been waiting since 4:30.
Nice. Next is we use for to refer to period of time such as 2 hours, 4 months and 7 years. That is, the concert lasted for 2 hours. Varun has been living in Paris for a year. This is also quite easy for you to understand. Okay. With this note, this video is getting over. Video means I'm going to keep addition video with this note to make you understand. ये वीडियो के ही साथ आपको आई विल से ये वीडियो के साथ आपको एक और वीडियो मैं अटैच कर रही हूँ जिसमें आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू द कंफ्यूजिंग पेयर. ओके, सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. ओके, बाय. Hello everybody. I am making this video for preposition. I will tell you what is the use of these prepositions in normal English. It is very much easy. Prepositions are here: on, into, over, off, under, below, to, at, upon and between. Only these words I am going to focus right now. And in also, right? So अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेपोजिशंस होती क्या है, भूल जाते हैं प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर हम इस वर्ड से समझना चाहें कि प्रेपोजिशन क्या होती है, तो अगर आप देखें प्रेपोजिशंस, पोजीशन, पोजीशन यानी कि वो वर्ड्स, वो कनेक्टर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उनको हम कह सकते हैं प्रपोजिशन. वो वर्ड जो एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं उनको हम कहते हैं प्रपोजिशन. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी. क्या? वो वर्ड जो दूसरे ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट पोजीशन बताते हैं उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन. सपोज करें इन, सबसे पहले मैं इन लेती हूँ. अगर इस पिक्चर के अंदर इन कहाँ पे दिख रहा है आपको? इस पिक्चर के अंदर अंदर दिख रहा है. इन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट से कवर्ड होता है, भर अंदर हो जाता है, तब उसको इन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में स्पून है और ये कैप है. राइट, दिस इज a spoon and this is cap. Spoon is in the container. Right? What about this cap? Cap is on the container. Right? Two prepositions are being used here. The spoon is in the container. बिल्कुल कवर्ड है, इसके अंदर घुस गई ये चीज, सो ये इन हो गई. राइट? और कोई चीज जो सरफेस के ऊपर रहेगी और स्टिल रहेगी, दैट इज ऑन. राइट? ये बहुत आसान डिफरेंस है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि इन कब लगाएं और ऑन कब लगाएं. ऑन जब होता है कोई चीज बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाती है ऐसे, तो ये हो गया ऑन. और कोई चीज जब इसके अंदर चली गई, किसी भी चीज के अंदर पूरी तरह से देखिए कवर है, ये स्पून की पोजीशन इस कंटेनर के अंदर कवर्ड है, अंदर चला गया, तो इसके इन. इवन ओपन कंटेनर में भी ये इन ही कहलाएगा. द स्पून इज इन द कंटेनर. राइट? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. तो हमने दो चीजें सीखी, इन और ऑन. ऑन कब होता है? जब किसी चीज के अंदर हो गया, और ऑन उसके सरफेस को टच करती हुई कोई चीज आराम से रखी हुई है, तो उसको कहते हैं ऑन. अब आता है कि टू. टू का मतलब होता है को, हिंदी में कहते हैं को. एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट को पास जाना है. फॉर एग्जाम्पल ये जनरली हम गोइंग के साथ इस्तेमाल करते हैं. लाइक हियर, सपोज इट इज अ पर्सन एंड इट इज अ प्लेस. द पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट. द पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट. सो इट इज हियर टू. इट इज हियर टू. टू is one person approaching to another.
So this way you can say it is direction preposition and going towards something. The opposite of this to is from. The person is coming from the school. The children are coming from the school. So to and from. To and from are the two opposite prepositions. Now we come for under. Under means नीचे. बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है. The cat is under the table. The cat is under the table. As you can see, this preposition screen is there. इसके just नीचे under आया है. तो ये still है. इस चीज में ये आराम से बैठी हुई चीज को under कहेंगे. The cat is under the table. Below. Below is level of two objects. जिसकी जैसे कि for example this table is under the fan, below the fan. This table is below the fan. So the eye level of the object is differentiating from high to low. So then it is below. Below. Eye level of the one object is down in respect of the other object, then it is below. Right? So what we have done? In, on, to and below. Now I come to into. Into. What is the use of this into? See, whenever person comes inside the room, movement is there. Coming, come का हो गया to और position का हो गया in. So this becomes into. My mother is coming into the room. Teacher is coming into the class. Teacher is going into the class. मीन्स एक गोइंग की पोजीशन के लिए टू ले लिया और एक उसकी एक्चुअल पोजीशन जो कि वो किसी क्लास में घुस रही है उसको ले लिया. तो यहाँ पे मूवमेंट है. जब भी गोइंग आएगा तो उसका टू आना ही आना है और साथ में इन हो गया तो इनटू हो गया. एक कंफ्यूजन हो जाती है कि इन होगा या इनटू. तो इसको कैसे समझेंगे? गोइंग की वजह से वहां पे टू लग रहा है. गोइंग इनटू. अगर टीचर क्लास में खड़े होके पढ़ा रही है तब उस केस में इन आएगा. द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. बट अगर टीचर अभी क्लास में जा रही है तो टीचर इज गोइंग इन टू द क्लास. ये बेसिक डिफरेंस होता है इन और इनटू में. यहाँ पे जो टू आता है उसके जाने की इंग्लिश की वजह से. तो गोइंग, कमिंग. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं बिटवीन. वेरी इजी. बिटवीन बीच में. जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है, जैसे मान लीजिए हम लेटर ले लें पी और हम यहाँ लेटर ले लें एस. तो बीच में ये ओ क्या है? बिटवीन. ओ इज इन बिटवीन पी एस. सो हियर द पोजिशन ऑफ ओ इज बिटवीन पी एंड एस. पोजिशन ऑफ द ओ इज बिटवीन पी एंड एस. सो बिटवीन का मतलब बीच में. अब आता है अपॉन कब यूज होगा, अप ऑन कब यूज होगा. अगर आप देखें इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, अप और ऑन. अप ऑन मतलब अप का मतलब ऊपर, ऑन माने बैठ गया. देखिए एग्जांपल देती हूं मैं आपको. सपोज ये डॉग है. ठीक है. द डॉग जम्प्ड अपॉन द कंटेनर. मान लीजिए इसको कुछ ऑब्जेक्ट को माने. द डॉग जम्प्ड अपॉन द कंटेनर. फिलहाल या द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल. द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल मतलब अप ऑन आ गया, बैठ गया. लेकिन अगर यही डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल, इधर से क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया. द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉन एंड ओवर? Here you can say both are the movements. यहाँ पे अप ऑन की मूवमेंट है, ओवर की भी मूवमेंट है. लेकिन अप ऑन में वो आके स्थिर हो जा रहा है, टेबल पे रुक जा रहा है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि एक जगह से जंप करके दूसरी जगह जा रहा है, वो बीच में रुका नहीं, टेबल को टच नहीं किया. सो जम्प्ड ओवर द टेबल. इसी चीज को आप किसी और भी चीज में ले सकते हैं. जैसे ब्रिज इज गोइंग ओवर द रिवर. द ब्रिज इज गोइंग ओवर द रिवर. इस तरह से कर सकते हैं. या
जब भी कोई मूवमेंट वाली चीज होती है तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं और अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। अपॉन कब होगा? जब वो ऑन पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अब आता है एट। एट कब करते हैं? कंफ्यूजन आ जाती है लोगों को कि ऑन होगा कि एट होगा। देखिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे हो, माने वर्टिकल में, और दूसरा हॉरिजॉन्टली उसको टच कर रहा हो, जनरली एट का इस्तेमाल हम कह सकते हैं। नॉक एट द डोर। डोर हमारा इस तरह का होता है, हम खड़े होकर ऐसे नॉक करते हैं इसके ऊपर, हम ऑलमोस्ट उसके पैरेलल खड़े होते हैं और फिर हम उसको नॉक करते हैं, तो देन इट इज नॉक एट द डोर होगा। नॉक ऑन द डोर नहीं होगा, क्योंकि ऑन का मतलब मैंने अभी बताया है कि बिल्कुल ये आपके इसके ऊपर, अगर इस पोजीशन में है कोई चीज तो आप उसके ऊपर जाके बैठ जा रहे हो, आपका सरफेस बिल्कुल इस फॉर्मेशन में हो रहा है। अगर आपका सरफेस दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरह से है और आप इस तरह से खड़े हो तो दिस इज एट द डोर, दिस इज एट द डोर। तो एट के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग वॉल पे कैसे लगती है? इसी तरह लगेगी ना पेंटिंग वॉल पे। पेंटिंग वॉल पे ऐसे तो लगेगी नहीं, वॉल हमेशा आपकी इस तरह पोजीशन पे रहेगी। तो जो वॉल के ऊपर कोई भी चीज लगाओगे वो एट की पोजीशन पे आएगी। क्लॉक, क्लॉक एट की पोजीशन पे आती है। नॉक एट की पोजीशन पे आती है, ऑन की पोजीशन पे नहीं आएगी। ऑन की पोजीशन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ऑब्जेक्ट, और एट के लिए वर्टिकल सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। सो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑन इज दिस वे, एट इज दिस वे। तो अब आप खुद विजुअलाइज कीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल एट के हैं और कौन कौन से ऑन के हैं। तो ये भी हमारा हो गया, एट भी हो गया। अब हम आते हैं ऑफ। वेरी इजी। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ फ्रेंड, आई लाइक। ऑफ का मतलब, जैसे का एग्जाम्पल बताओ बेटा कोई। का ऑफ का, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई फ्रेंड। फॉन्ड ऑफ, मैं अपने दोस्त का बहुत, मतलब मैं अपने दोस्त को बहुत पसंद करता हूं। ऑफ हो गया। और बताओ का होगा ऑफ दिस कंटेनर। सपोज आई टेक दिस, दिस इज द कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस लिड? कलर ऑफ दिस लिड। ऑफ, इस ढक्कन का क्या कलर है? तो इस तरह से ऑफ का इस्तेमाल होता है। यस, तो हमने अभी जो भी आप प्रेपोजिशंस किए हैं वो किए हैं अपॉन, एट, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। आप इनको बोलते समय घर में भी जो भी सामान नजर आ रहा है आपको, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नजर आ रहा है, जैसे कंटेनर नजर आया तो आपको प्रैक्टिस करनी है। कलर ऑफ द लिड, कलर ऑफ द लिड। स्पून इन द बॉक्स, spoon in the box. ठीक है। जो भी घर में नजर आती है चीजें, उसको मन में आप रिपीट करते जाइए। फ्रूट्स इन द बास्केट, Fruits in the basket. तो जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये वर्ड्स आपके मन में बैठ जाएंगे कि इन कहाँ पे लगता है, ऑन कहाँ पे लगता है, ओवर कहाँ पे होता है। इस तरह से क्या है, पढ़ो इसे। Dress in the almirah. यस, जब भी आप अपनी अलमारी खोलने जाओ तो मन में इस लाइन को बोलो, ड्रेस इन द अलमीरा। तो ये इन आपको फिट होता चला जाएगा माइंड में। यस, बोलो, व्हाट इज दिस? The cat is under the table. पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने, दिमाग में थिंक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ छोटा सा फ्रेज थिंक करिए, कैट अंडर द टेबल, कैट अंडर द टेबल। Cat under the जैसे table. ये है, बोलो, Bottle बॉटल, on the table. बॉटल ऑन द टेबल, बॉटल ऑन द टेबल। इस वगैरह की चिंता मत करिए। ये जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस तरह से आपकी प्रपोजिशन में मास्टरी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्राइमरी प्रपोजिशंस यूज किए हैं जो बच्चों को जनरली क्लास में आती हैं भरने के लिए, कि आपके ये प्रपोजिशंस आसानी से लर्न कर सकें बच्चे प्राइमरी क्लासेस तक। इसके अलावा जो प्रपोजिशन है मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज की गई है यहाँ पर। अपॉन, मूवमेंट होती है, बिल्ली जंप करके जब टेबल पे रुक जाती है तब आ जाता है अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। लेकिन जब वही बिल्ली पूरी टेबल को क्रॉस करके निकल जाती है तो वो ओवर हो जाएगा, जम्प्ड ओवर द टेबल। ठीक है। अब अंडर और बिलो का क्या? जब बिल्ली टेबल के जस्ट नीचे बैठ गई आराम से तो हो गया अंडर। लेकिन अगर उसका लेवल नीचे हो गया, लेकिन उसको बिल्कुल उसको कवर नहीं किया है उसको बॉडी को, तो वो बिलो होता है। बिलो के लिए दूसरा एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि बिल्डिंग खड़ी है, उसका ग्राउंड फ्लोर है
और सेकंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर इज बिलो द फर्स्ट फ्लोर। ये आई लेवल को डिफरेंस करता है। टू का मूवमेंट के लिए साथ आता है, जैसे गोइंग कमिंग के साथ टू आता है। जब एक चीज अप्रोच कर रही होती है दूसरी चीज को तो टू आ जाता है, जब दूर जा रही होती तो फ्रॉम हो जाता है। ऑन, इनटू और ओवर। ओवर का क्लियर हो गया। और इन और इनटू में भी डिफरेंस मैंने आपको बताया था, जब मूवमेंट होती है तो टू के लिए उसके लिए आ जाता है और फिर साथ में इन लगा देते हैं तो इनटू हो जाता है। द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लास। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रपोजिशंस